جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے کرپشن کے حوالے سے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں اگر میرا بس چلے تو کرپشن پہ سب کو الٹا لٹکا دوں، لیکن پھر بھی پنجاب میں کرپشن تو ہے. یہ بات پوچھنے کی ہے کہ جب ان کے وزیر کہتے ہیں ڈیڈ لائنز دیتے ہیں 7 نومبر کی فلاں تاریخ کی کرپشن آگے پیچھے ہم فکس کر دیں گے، یہ کس قسم کی ڈیڈ لائنز ہے؟ مطلب وہ یہ میکنگ نہیں، رحمان ملک صاحب نے بھی کہا نا کہ ہم نومبر میں، انہوں نے کہا جی میں تو کرپشن کے خلاف ایک شروع کر دیا. بابر روانے کا 2011 میں شروع کریں گے کرپشن کے خلاف. دیکھیے یعنی ایک 7 نومبر 2010 کی ڈیڈ لائن تھی، دوسرے نے 11 کی دے دی. اب اس کے بعد روز ان کی رپورٹس آتی ہیں، روز ان کی رپورٹس آتی ہیں، روز ہمیں ایک نئی لسٹ آتی ہے. ہم تو تھک گئے لسٹیں بنا کے ان کی لسٹوں کی کوشش ہے کہ آپ تھک جائیں گے، کرپشن جاری رہے گی. تو آپ کی بھی کوئی کم نہیں ہے، آپ تو کر رہے ہیں نا، بالکل کرپشن کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، ہر حکومت کر رہی ہے. مسئلہ یہی ہے جو حکومت میں ہے. آپ ذرا ہوشیار رہے ہیں، آپ کے خلاف 2 کرپشن کے کیسز آنے والے ہیں. بتائیے، آپ بتاتا ہوں. بتائیے، وہ دھمکی دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں بتائیں نا. میں کیوں دھمکی دوں؟ تو خواتین کو تو میں نہیں دھمکی دیتا. دیکھیں ہم سیریس پروگرام کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس ہماری پارٹی کے خلاف کوئی کیسز ہیں بتائیں، مطلب یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. کیوں کے خلاف نا، ہم تو پرویز مشرف. یہاں پر میں ایک یہ چیز کروں کہ یہ پاکستان میں یہ جو روایت ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، مطلب جیسے ابھی یہ ہے جسٹ ٹو پٹ اے پریشر آن اے سرٹن پولیٹیکل پارٹی. ایک دم سے آپ نے پوائنٹ کر لیا، لیکن ابھی بھی ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے. ایک منٹ فضل الرحمان کے خلاف بھی کیسز کھل رہے ہیں. آپ کی نظر میں یہ حکومت کیسی بھی ہے، لیکن آج ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ٹوٹلی ڈسکریج. نہیں، یہ صحیح نہیں. یہ چیز لیکن یہ ایک فیکٹ ہے. ہم نہیں اگری کرتے کہ وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف ریکنسیلیشن ہے. یہ کرپشن پہ آپ لوگوں نے ریکنسیلیشن کی ہے. آپ اتنے ٹالرنٹ ہیں کرپشن پہ کہ آپ لوگوں نے ریکنسیلیشن کا جو نعرہ مارا ہے نا، یہ کرپشن کرنے کے لیے مارا گیا ہے. کے حق میں اور جمہوریت کے حق میں یہ بتائیں کون سے کولیشن پارٹنر ہیں آپ کے جن کو کرپشن کا سکیم نہیں ہے. فلٹرائزیشن ہونی چاہیے کہ اگر اچھے پولیٹیشنز کو آگے آنا چاہیے. یو کی ناٹ پٹ اے بلیم ہمیں ریکنسیلیشن سارے پولیٹیشنز خراب ہیں اور ساری سیاسی پارٹیاں خراب ہیں. پولیٹیکل ریکنسیلیشن اس ملک کو تباہ کرے گی. ہمیں اچھی رولنگ ملی، اچھی اپوزیشن چاہیے، ہمیں ریکنسیلیشن نہیں چاہیے. آپ اگر اس وہ بھان متی کا کنبہ ہو گیا نا، بھان متی کا کنبہ سب کو لے کے چلے ہم مل کر کرپشن کریں گے، آگے لے کے جانے کا جمہوریت کرنے کے لیے یہ بات ہے. ہمیں اچھی اگر رولنگ لیڈ، اچھی اپوزیشن چاہیے، ہمیں ریکنسیلیشن مطلب یہ ہے کہ دونوں کا جو پوائنٹ ہے اس کو تھوڑا ریپ اپ کرنا چاہ رہی ہوں. جو کلاسٹر صاحب بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے کہ اگر گینگ بنائی ہوئی ہے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرنے کی، جیسے کہ ابھی ہوا کہ جی پی ایم ایل کے خلاف ہم لے کے آئیں گے، تو یہ اٹیک اسٹریٹجی اور یہ ڈیفینڈ اسٹریٹجی، ڈیفینڈ بھی اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت کرتے ہیں. جب مولانا صاحب کے کیسز ڈیفینڈ کرنے تھے تو چھپا کے رکھے، جب ان کا پریشر ڈالنا تھا ٹھکا ابھی تو کھول دیا نا. یہ جو پوائنٹ ہے بند ہو جائے گا، مولانا جوائن کریں گے. مولانا صاحب نے بھی کہا نا کہ اگر میرے خلاف کیس کھولے تو میں سب کو نچوڑ دوں گا. مولانا صاحب کلاسٹر صاحب کا پوائنٹ پرووز کہ جی وکٹمائزیشن ہے، کہاں نہیں ہے. یہی تو اسی کو کہتے ہیں وکٹمائزیشن. ہمیں نہیں چاہیے کسی کو پروٹیکٹ نہیں کریں اور ساروں پر اٹیک کریں. پولیٹیشین جو ہے نا، سمجھو پولیٹیشین بلیک میل ہمیں کرتے ہیں 2-4 چیزوں پہ. ایک تو کہتے ہیں ہم نے ریکنسیلیشن لے، اس ریکنسیلیشن عوام کو کیا فائدہ؟ آپ لوگ تو یہاں پہ میسو کرپشن کر رہے ہیں اور ڈیلی ہم اسکیم پہ اسکیم دے رہے ہیں اور آپ آگے سے خوش ہوتے ہیں. دیکھیں جی جمہوریت ہے، ایٹ لیسٹ آپ چھپ سکتے ہیں. اور شکر کریں میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی کچھ یہ کورٹس نے تھوڑا سا ایکشن لینا شروع کیا. ابھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہم خیبر پختونخوا کا 5 بلین روپیز کی اراضی کا اسکینڈل دیا ہے. ان پہ ڈر تھا کہ کورٹ اس پہ ایکشن کریں گی، لینڈ الاٹمنٹ اس کو کینسل کر دیے. انہوں نے پورے کا پورا ریسرچ اسٹیشن کو ایک اپنے نوکر کے نام پہ الاٹ کر دیا. آپ نے کسی دنیا میں سنا ہوگا یہ جو کہہ رہے ہیں نا پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اگر میں پولیٹیشین ہوں، میں نے کرپشن کی ہے، میرے اوپر کیسز کریں، آپ مجھے ٹرائل کریں. جیسے ہو رہا ہے سارا. آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر ریکنسیلیشن کی آڑ میں ہم گینگ بنا رہے ہیں. ہمیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل
विक्टिमाइजेशन जो है वो होनी चाहिए। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आई मैं मिनिस्टर, एक और इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। अगर मैं आपका यहाँ पब्लिक फिगर हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, वजीर आजम हूँ, सदर हूँ, बट अगर खुद ही फिर अकाउंटेबल हूँ, काम कर रहा हूँ, छुट्टी पुट एंड ये थोड़ा होना चाहिए कि मुझे छोड़ दे कि मैं पॉलिटिशियन हूँ और अगर हमने पकड़ा विक्टिमाइजेशन होगी, ये नहीं होती। एक मिनट क्लास्टर साहब, मुझे 1 मिनट आप जवाब देने का। प्रेसिडेंट है, उसके खिलाफ केसेस है, प्राइम मिनिस्टर है, 5 साल कैद काटी है, और अगर आगे कोई केस है ले आए, ठीक है, वजीर है, जो भी है केसेस ले आए। लेकिन मैं आपको ये बात करूंगी कि हम ये फिर भी बोलेंगे कि पॉलिटिकली और प्रेस को, मीडिया को आजादी है। पाकिस्तान को अगर आधा टाइम पॉलिटिशियंस ने रूल किया है तो आधा टाइम चले वो किया, लेकिन वो भी हम रोजाना अखबारात का भी हवाला दे रहे हैं ना, आपने कितने जनरल्स के खिलाफ केसेस लाए हैं और अदालतों में आप ले ना इस वक्त मैं बताता हूं, आप हमारे खिलाफ आ सकते हैं, मैं बताता हूं, आपको रेलवे स्कैंडल मिनिस्टर के खिलाफ आ सकते हैं, तो यू मस्ट रेलवे स्कैंडल पे आपकी नेशनल असेंबली की आपकी रेलवे, आपका पाम वाले का जो वहाँ पे पाम का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट है, जनरलों को इन्होंने नॉमिनेट किया। आपकी स्पीकर ने सुन, आपकी स्पीकर फहमीदा मिर्जा ने हाउस की कमेटी की रिपोर्ट को 4 महीने से डंप करके रखो। आप क्यों नहीं केस करते हो जनरलों पे? आप करें, उनको प्रोसीड करें, आप नहीं करेंगे। आपका वजीर आजम द मोस्ट वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री, वो उल्टा हमें कह रहे होते हैं एक्शन elected unanimously by the parliament, that थोड़ा मतलब होता है क्वेश्चन को टॉलरेट करें। weak parliament, अगर आपको क्या सिग्नल हम सिग्नल नहीं कोई दे रहे, हम तो हाईलाइट कर रहे हैं, हम चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं। और सब लोगों को ये बात मुझे बहुत बोलेगी, मैं आपसे पूछती हूँ, बात बहुत अच्छी लगी। आपके हाउस में आया हुआ है, हमें आपकी डॉक्टर फहमीदा यूनानिमसली इलेक्टेड भी अगर वजीर आजम, अगर हमारा ये करप्शन सामने आए बंद कर रहे तो सबको लेके चला रहे हैं, ब्लैकमेल करके पार्टियां करप्शन कर रही हैं। कबूल है, अगर सियासी फोर्स को साथ में लेकर चला रहे हैं, किस्सा मुख्तसर ये है कि अगर हम हर सियासी फोर्स को साथ में लेकर चला रहे हैं जमहूरियत की खातिर, हर सियासी फोर्स को, ख्वाह वो मुल्ला है या कोई LQM है या लेकिन करप्शन करते हैं तो उससे कोई किसी को छुपाए ना। अगर ये हमारा गुनाह है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये गुनाह कबूल है। अदलिया को हमने आजाद किया, सब ने 19th और 18th अमेंडमेंट पास किया है। इशू तो करप्शन है कि गुनाह तो लगेगा ना जमहूरी हुकूमत पर। इशू गुनाह आपका ये है कि आप करप्शन को अलाउ कर रहे हैं और आपने रिकंसिलिएशन की हुई है करप्शन पे, और सारों को मिल के आप कह रहे हैं अब हम भी खा रहे हैं, आप भी खाएं। हम खा रहे हैं, नून लीग की करप्शन छुप जाती है। चले हम इधर ही आ रहे हैं, नून लीग की करप्शन छुप जाती है। नून लीग की कैसे छुपती है? क्यों काम आती है? मैं तो ये सवाल करना चाहती हूँ। वो क्लासेस हम 4 किलोमीटर के अंदर रह के हम खाली देखते हैं इस्लामाबाद। मैं जब अपनी लिस्टें बनाती हूँ करप्शन के ऊपर तो मुझे ANP की लिस्टें, ANP के जो अखबार हैं KPK के, उसमें बेतहाशा नजर आते हैं। जब सिंध के अखबार आप देखते हैं धमाधम मस्त कलंदर वहाँ भी नजर आ जाते हैं। पंजाब की आपको नजर नहीं आती, बड़ी छुप जाती है। मेरा ये बड़ी सीरियस बात है। पंजाब की पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है मीडिया मैनेज किया हुआ पंजाब में। सवाल तो जवाब मीडिया मैनेज किया हुआ है, जवाब ये रेलेवेंट है कि पंजाब में जो लीडरशिप है वो साफ और शफाफ है, में खुदा के फजल करम से बेहतर परफॉर्मेंस है उनकी जात पर उंगली नहीं उठी। मैं आपसे अर्ज करूंगा सबसे पहले उन्होंने कितना देते हैं? अब बात सुने, अब बात करने देंगी या आप बातों में बात करना बात करें। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि उन्होंने सबसे पहले यहाँ एक एंटी करप्शन के लिए सेल कायम किया। उसमें से उन्होंने पहले जो केसेस 2 साल से 14 साल में फैसला नहीं हो रहा था, अब 7 दिन से 6 माह में फैसला हो रहा है। इसी तरह उन्होंने कम अज कम जो है 80 से ज्यादा बुरी रेपुटेशन वाले लोगों को हटाया है और उनकी जगह बेहतर लोग लाए हैं। अगर आप
अगर आप वो शेर आदिल ग्रुप भी है जिसमें 2 बेटे और एक उनके वालिद साहब जो उनको अपने जगह पे रखा है। 97 बुरी शोहरत रखने वाले लोगों को हटाया है, उनकी जगह बेहतर लोगों को वो लेके आए हैं और उसके नतीजे में ये किया है। अच्छा, इस तरह प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स थे, इन्होंने जनाब 817 गिरफ्तार किए हैं। फैसलाबाद में 4 बच्चे मारे हैं। उस पर राना सनाउल्लाह पे बकायदा पूरे बच्चों की मऊ ने आके कहा पकड़ के गए। जो प्लाजा गिराने का इशू था फैसलाबाद में उसको हाईलाइट आपने 4 बच्चे, आपने जवाब नहीं दिया। सिर्फ 4 बच्चे अटैक हुआ ना, आपने 4 बच्चे फैसलाबाद से उठाए, उनकी मऊ बेचारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उनको शूट आउट करके स्टेज एनकाउंटर में मारा गया और राना सनाउल्लाह पे नाम आए और मीडिया मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इसी तरह से जो एंटी करप्शन सेल है, इसने जिन लोगों को 771 चालान फैक्ट्री को उन्होंने वहां पे लूट दिया लाहौर में गन पॉइंट 2 बिल्कुल 2,74 लाख रुपए रिकवर खुद किए हैं और उसके अलावा जनाब ये जनाब 13 करोड़ रुपए जो हैं ये इनडायरेक्टली रिकवर करके उनके, इसके अलावा जो है उन्होंने इंक्वायरियों की रफ्तार बढ़ा दिया। 11,384 इंक्वायरियां जो हैं उनमें से 9,210 जो है वो मुकम्मल कर लिए। मैं ये अर्ज करूंगा करप्शन मौजूद है, देखना ये है। सदीक फरूक साहब मुझे बड़े पसंद है, बड़ी इनकी जद्दोजहद है और डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए इन्होंने जो मारे खाई ना 9 साल। एक रिक्वेस्ट है मेरी थोड़ी सी, और बिहाड़ी का आपने नाम सुना होगा, दरिया सुतले वहां से गुजरता है, 400 एकड़ वहां दरिया की जमीन आपने मैनसारा के कुछ लोगों को अलाट किया। 400 एकड़ शो में मानसेरा में 400 एकड़ बिहाड़ी के आपके करीब से दरिया गुजरता है सुतले, उसकी दरिया की जमीन को इन्होंने अलाट किया है वहां पे मैनसारा के लोगों को। एक इंक्वायरी इन्हें कहें आप उस पे करवा लें, आप देंगे और उस पे क्लीन चिट मिलेगी, क्योंकि वो बड़े बड़े लोग जो इन्होंने बात की है ये मुझे दे दें, इसकी भी इंक्वायरी करेंगे। लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कैंसर की मरीजों को 16 लाख मिल गए जिसमें आपने जिक्र किया था, अपील की। इन्होंने नहीं दिए, पंजाब हुकूमत है वो बेचारे, अल्लाह भला करे मेरे पढ़ने वालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। आपने तो आपने कहा इंक्वायरी 2-3 और बातें मैं चंद जुमले अर्ज करूंगा। और बड़े बड़े लोग उसके पीछे हैं, जब नाम आएंगे ये भी डर जाएंगे। आप चुप कर जाओ, डर जाएंगे। चुप कर जाऊंगा, मुझे जवाब देना है या नहीं? मुझे जवाब ये देना है कि अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान या पंजाब, चूंकि मैं पंजाब में अब फरिश्तों की हुकूमत भी हो गई है और करप्शन खत्म हो गई है, तो मैं ये कहूंगा कि नहीं। मैं ये कहूंगा कि आप सिर्फ कंपेयर कर लें मरकज बाकी सूबों के साथ पंजाब को। अगर आपको वहां गवर्नेंस बेहतर लगे, अगर आपको वहां इकदामात बेहतर लगे, इस तरह के फैसलाबाद का वाकया भी हुआ, 2 लड़कों को वहां लोगों ने सोल्यूशन मैं ये अर्ज करूंगा कि ये मारा गया, पकड़ के पुलिस ने मारा गया, दान में सारी स्टोरी छपी है। आपने ब्रेक लेनी है। नहीं ये ब्रेक के बाद बात जो है ये अमेरिका के से भी जहां जमहूरी मुल्क है और 250 साल से वहां जमहूरियत कायम है, वहां भी आपको और पंजाब परस्ती छोड़ दें। जब पाकिस्तान की बात आती है, जब पाकिस्तान, तो आप कहते हैं कि जब से एडवाइजर बने हैं ना ज्यादा समझदार हो गए। हक में ये बार भी 1 मिनट के लिए प्लीज। पंजाब के हुक्मरानों को कुछ भी, हम लिखते भी रहते, बोलते भी रहते हैं। एक चीज है, चाहे हमारी फेस सेविंग के लिए, एक उसके लिप सर्विस के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए, एटलीस्ट कोई करप्शन की स्कैंडल है, कोई उन पे तनकीद है, कोई चीज हाईलाइट है, उस पर शहबाज शरीफ रिएक्ट करता है। आपका इस्लामाबाद में या बाकी सूबों में इस तरह का रिएक्शन सामने नहीं आता। शहबाज शरीफ में ये है कि रिएक्शन जरूर करता है, उसके नतीजे बात की बात होती है, ये रिएक्ट नहीं करता। बाकी जो है यहाँ पे 3 चीजें रखी हैं, या फेडरल हुकूमत, ये रिएक्ट जवाब देनी होती है। बिल्कुल इसी पॉइंट को मजीद हम आगे बढ़ाएं। करप्शन का बहुत करप्शन का इस हवाले से अभी भी जारी है, लेकिन ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा